Hi everyone, my name is Sarabjit Kaur and welcome to my YouTube channel. In today's video, I'm going to create a program to find out the greatest of three number, and these three numbers will be taken from the user, and I'm going to use nested if statement for creating this program. And before starting this program, I request you all to please subscribe my channel and hit the like button too. So in this program, in the first line, I have written the name of this program using two slashes, and I have made this line as a comment. And after writing this comment, I have included header file that is required for writing C++ program. And after writing the header file, I have written using namespace std that create a space in a memory for our program. And basically our program starts from int main, and main is an authorized function which has a power to execute all the statements written inside its block. So I will take three variables, I will declare three variables a, b and c, and I'll store three numbers in these three variables. Okay, so I have taken a, b, c, and I'm going to take these three values from the user. So first is enter the first number, and I will see in this value, and then I will write cout, and I'll use /n and enter the second number. Take this number also using cin, and similarly you have to take the third number also. I forgot to use /n here, so I will use /n, and I will use cin also to take number. Then I'll make comparison between these three numbers. First, I will compare A and B. Okay, I will take these two numbers and I'll compare these two numbers as if A is greater than B. Okay, so I have written A is greater than B. If this condition A is greater than B becomes true, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम क्या करेंगे? If this condition becomes true and A will be the greater number after comparing with B, then I'll make comparison between A and C. अगर A की वैल्यू B से बड़ी हो जाती है और B छोटा हो जाता है और A की वैल्यू B से बड़ी होती है, तो अब मैं A और C का कंपैरिजन करवाऊंगी बाय राइटिंग A इज ग्रेटर देन C. अब इस चीज को ध्यान से देखिए कि मैंने जहां A इज ग्रेटर देन C लिखा है वो एक और इफ है जो आउटर इफ के अंदर यूज की है. आउटर इफ इज A इज ग्रेटर देन B, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब मैं इसके इंटरनल वाली इफ को चेक करवाऊंगी. अब मैं A और C का कंपैरिजन करवा रही हूं. अगर यहाँ पे भी A बड़ा होता है तो फाइनली हम डिक्लेयर कर देंगे कि A बड़ा है. सो मैं ऐसे लिखूंगी कि A इज ग्रेटेस्ट नंबर, कि ए नंबर जो है हमारा सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर है. अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हम क्या करेंगे? एल्स लिखेंगे, और एल्स लिखने के बाद हम ये लिखेंगे कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो सी विल बी द ग्रेटर नंबर, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर ए छोटा रहता है तो फिर बड़ा नंबर कौन सा होगा? बड़ा नंबर सी होगा. सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सी जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा. ठीक है, और ये पूरा का पूरा ब्लॉक कब काम करेगा? ये तब काम करेगा जब ये आउटर वाली कंडीशन ट्रू होगी, A is greater than B. So A is greater than B, outer condition जब true होगी, then this true block will be checked by the compiler or execute by the compiler. और अगर ये outer condition ही false हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? तो हम इस outer वाली if का else block create करेंगे. ओके अगर ए कंडीशन हमारी यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी जो है ये फॉल्स हो जाता है, ए की वैल्यू यहाँ पे छोटी रह जाती है, तो अब फिर हम क्या करेंगे? विल मेक कंपैरिजन बिटवीन बी एंड सी इनसाइड else, and this else is a part of outer if. okay, so मैं यहाँ पे b और c का कंपैरिजन करवाऊंगी. if b is greater than c,
अगर यहाँ पे b की वैल्यू बड़ी रहती है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी यस b इज ग्रेटेस्ट, तो b जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम इसका क्या यूज करेंगे, इसका एल्स यूज करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करेंगे, यही वाली स्टेटमेंट दोबारा लिखनी पड़ेगी कि सी सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट सेम हो जाएगी। So, इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा और ये मेरे प्रोग्राम का लॉजिक है। सो हाउ कंपाइलर विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूजर ने 10 एंटर किया है, सो 10 विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड 45 विल बी द वैल्यू ऑफ बी एंड सी का हम देख लेते हैं, सी का वैल्यू दिया है 4। सो 4 वैल्यू हमने यूजर से ली है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कंपाइलर कंपैरिजन करेगा 10 इज ग्रेटर देन 45, कंपैरिजन करेगा इस कंडीशन का। सो इस कंडीशन को कंपेयर करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 10 इज ग्रेटर देन 45। क्या 10 की वैल्यू 45 से ग्रेटर है? नो। तो इस कंडीशन का आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। तो जब इस कंडीशन का आंसर फॉल्स आएगा वी विल स्किप दिस ट्रू पार्ट, क्योंकि ये पार्ट तो तभी एग्जीक्यूट होना था जब कंडीशन ट्रू होनी थी। तो अभी क्या होगा, अब ये कंडीशन हो गई है हमारी फॉल्स, इसीलिए अब फॉल्स पार्ट मींस एल्स का पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा, बी की वैल्यू कितनी ली थी हमने 45 और सी की वैल्यू कितनी ली थी 4 ली थी। तो देखिए यहाँ मैंने b की वैल्यू 45 ली थी और c की वैल्यू 4 ली थी। अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन कराऊंगी, 45 इज ग्रेटर देन 4, यस। सो क्या हो जाएगा प्रिंट, ये ट्रू, इस कंडीशन का ट्रू पार्ट। So this true statement will be executed by the compiler and our answer will be 45 is the greatest number. ये मैंने आपको लॉजिक समझा भी दिया है, मैंने क्या लगाया है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। सो मैं पहले इस सारे एक्स्ट्रा नंबर्स को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ एंड आई विल सेव दिस प्रोग्राम और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी। जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे सबसे पहले हमसे फर्स्ट नंबर मांगेगा, तो मैं फर्स्ट नंबर दे रही हूँ 34। फिर ये हमसे सेकंड नंबर मांग रहा है तो मैं दे रही हूँ 56। फिर ये हमसे थर्ड नंबर मांग रहा है तो मैं दे रही हूँ 23 और मैंने एंटर की प्रेस की। सो मेरे पास आंसर आ गया 56 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, 56 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, सो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब मैं एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, मैं इसे दोबारा से रन कर रही हूँ। मैं वैल्यूज कुछ और दूंगी, मैं सबसे पहले वैल्यू दे रही हूँ 11, फिर मैंने दे दिया है 12 और फिर मैंने दे दिया है 89। सो यहाँ पे आ रहा है 89 इज ग्रेटेस्ट नंबर। सो मेरा प्रोग्राम जो है वो दोनों केसेस में अच्छे से बिल्कुल चल गया है। तीसरी बार भी अगर एग्जीक्यूट करना है मैं तीसरी बार भी कर देती हूँ। अब हम इस बार पहले नंबर को सबसे बड़ा रखेंगे, तो फर्स्ट नंबर मैंने 56 दिया है, दूसरा नंबर मैंने 23 दिया है, तीसरा नंबर मैंने 12 दिया। So 56 is the greatest number. I hope this program is clear to you. And अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है एग्जीक्यूट करने में या फिर कुछ किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। और if you want to learn any new topic regarding C++ language, you can mention in the comment box. Don't forget to subscribe my channel and hit the like button also. So see you in the next video. Bye bye.